اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے سب سے پہلی بات دیندار بنو. دیندار بننے کی ضرورت ہے. دیندار بنو. دیندار کیسے بنے؟ آج کل لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی رکھ لی، دیندار ہو گئے. نہیں، صرف دینداری یہ نہیں ہے. اگر مختصر میں دینداری بتائی جائے تو دینداری کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو چھوڑ دو، جن چیزوں کو فرض کیا اس پر عمل کرو. یہ دینداری. مختصر میں اگر آج سب کی توجہ کس طرف ہے؟ اتنے درود پڑھو، اتنا کلمہ پڑھو، اتنا ذکر کرو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نوافل پڑھو، اتنے روزے رکھو. سب اپنی جگہ ہے، لیکن ثواب پر اسلام توجہ کم دیتا ہے. اسلام نیکی پر توجہ کم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے گناہ سے بچو. اللہ کے نزدیک نیکی کرنے سے بڑی اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا، لیکن جو گناہ سے بچ جائے گا وہ صرف نیکی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ولایت کا ذکر کیا وہاں نیکی کا ذکر نہیں کیا بلکہ گناہ سے بچنے کا ذکر کیا. قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو اللہ کا ولی کون ہے؟ تو کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لایا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. دیکھیں آپ، ولی کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی کرتا ہے، ولی کے لیے کہا کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچے. پھر ایک مقام پر قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو، اور اس کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی طرح دیکھیں جو نیکی کرے گا، ایک نیکی کرے گا، اللہ نے اس کو صلہ کیا دیا. اللہ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس جیسی 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا. دیکھو نیکی کے بدلے میں 10 گنا یعنی کہ 10 درجہ اس کی نیکی بڑھا دی. نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں بتایا، لیکن جو گناہ سے بچے گا اس کے لیے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. یعنی نیکی کا صلہ 10 درجہ نیکی اور گناہ سے بچنے کا 2 جنتیں. کون سی چیز بڑی ہے؟ گناہ سے بچنا. اور آج انسان توجہ دے رہے نیکیاں کرنے پہ، اتنا ذکر کرو، یہ سب اپنی جگہ ہے. آدمی اسی کو کہتے ہیں صوفیہ کے شیطان محنت کرتا ہے آدمی کو فرائض سے ہٹا کر وہ نوافل میں الجھا دیتا ہے. آج ہم نوافل میں الجھے ہوئے ہیں، فرض سے ہٹے ہوئے ہیں. پہلی چیز دیندار بنو. تو دیندار کیا؟ فرائض پر عمل کرو، حرام سے بچو. یہ دینداری. دینداری کا دوسرا تصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اب یہ چیز اب دیکھیں ہماری دینداری کہاں جاتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے 2 جملے کوئی کسی کی تعریف کر دے تو بھی ہمیں بری لگتی ہے، کسی کا دھندا اچھا چلتا ہے تو بھی ہمیں برا لگتا ہے، کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہو تو بھی برا لگتا ہے، کسی کی بچی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو بھی ہمیں برا لگتا ہے. یعنی انسان اتنا گر چکا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک وہی چیز اپنے ایمان والے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرو تم پکے مومن نہیں ہو سکتے. ہم چاہتے ہیں ساری ترقیاں مجھے اور دوسروں کو کچھ ملے ہی نہ، ساری خوشیاں مجھے ملے دوسرے کو کچھ ملے ہی نہ. آپ بتائیں کہاں انسان؟ آئیے اس کی ایک مثال بتاؤں. صحابہ کی زندگی میں وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے تھے، بلکہ اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے دوسرے مسلمانوں کو. روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے بکری ذبح کی تو بیوی سے مشورہ کیا کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ بکری کا گوشت کھائیں گے. تو ایک کام کرتے ہیں کہ بکری کا سر اور بکری کے پائے اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں مسلمان بھائی کو کہ ہم تو مہمانوں کے بہانے بکری کا گوشت کھا ہی لیں گے، ہمارا پڑوسی بھی آج بکری کا گوشت کھا لے. تو بکری کے سر اور بکری کے پائے اٹھا کر انہوں نے دے دیا پڑوسی کو. پڑوسی مسلمان تھا.
जब पड़ोसी को बकरी के सर और बकरी के पाए पहुंचे तोहफे में, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि देखो हम तो खाते ही रहते हैं, 2 दिन 4 दिन गैप करके हमारे यहाँ तो बकरी का गोश्त तो आ ही जाता है, अगर हम ये बकरी के पाए और बकरी के सर हम आज न खाएं और इसको अपने मुसलमान भाई पड़ोसी को दे दें तो कितना अच्छा होगा, ये उसके बच्चे खा लेंगे और हमें दुआ मिलेगी। उन्होंने दे दिए पड़ोसी को। देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कैसी जहन साजी की थी, कैसे दिमाग बनाया था उन लोगों का। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी कैसी तरबियत की थी। अब दूसरे पड़ोसी, जब पहले पड़ोसी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा हम अपने पड़ोसी को दे दे। दूसरे पड़ोसी को बकरी के सर और पैर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि हम लोग भी तो कभी ना कभी खाते ही रहते हैं, हम अपने पड़ोसी को दे दें, हमसे ज्यादा जरूरत उनको है। आप यकीन जाने इस्लाम की तारीख गवाह है कि मदीने मुनव्वरा के पूरे महल्ले में वो बकरी का सर पैर घूमते 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 वहीं पर आ गए जहां से चले थे। किसी ने नहीं खाया, हर एक ने दूसरे को दिया, दूसरे को दिया, दूसरे को दिया। और जिनके घर बकरी ज़बह हुई थी बाजू वाले को मालूम नहीं था, जब घूम घुमा के उनके घर आया तो उन्होंने सोचा चलो यार अपने पड़ोसी को दे दो, आज तो उसके घर मेहमान भी है, उसको ज्यादा जरूरत है, उन्होंने वहां पहुंचा दी। ये फिक्र थी, ये सोच थी। आज बताएं ये सोच कहां है? दीनदारी का मतलब लोग क्या समझते हैं? 5 वक्त की नमाज, दाढ़ी टोपी, फिर चाहे दिल में बुग़्ज़ हो, कीना हो, हसद हो, एक दूसरे के लिए दुश्मनी हो। अब बताएं हम ये समझ रहे हैं कि नमाज पढ़ो सब माफ है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना होगा उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर भी नहीं जा सकती। अब बताएं हम तो समझ रहे हैं कि हम बहुत पाक दामन हो गए, बड़े मुत्तकी हो गए, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, चाशनी पढ़ रहे हैं, जुमरात और पीर का रोजा भी रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तेरे दिल में अगर किसी मुसलमान के लिए कीना है तो ना तेरी नमाज सर के ऊपर जा रही है, ना तेरी दुआ सर के ऊपर जा रही है। नुकसान किसका है? तो पहली चीज अगर कामयाब होना है तो दीनदार बनिए। और दीनदारी मेड इन इंडिया दीनदारी नहीं, वो दीनदारी जो अल्लाह के रसूल ने जिसको दीनदारी करार दिया। हम हिंदुस्तान लेवल पे दीनदार बनते हैं, ये रसूमात वाली दीनदारी हमें निजात की राह पर नहीं ले जा सकती। दीनदारी वो चाहिए जैसा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बनाने के लिए आए थे। उस दीनदारी में कितना तकवा है, कितनी परहेजगारी है, उस दीनदारी के अंदर किस कदर एक दूसरे का ख्याल है। आइए एक मिसाल आपको बताऊं कैसी वो दीनदारी थी। आजकल आदमी किसी के बारे में कुछ सुनता है, बगैर तहकीक के उसको आगे बढ़ाना शुरू करता है, ठीक है, बल्कि नहीं भी सुनता है तो आदमी टोह में लगा रहता है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। और लोगों को बेइज्जत करना आज लोगों का महबूब मशगला है, लोग उसको यानी कि गुनाह भी नहीं समझते। जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काबे की हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले की हुर्मत बड़ी है। यानी काबे की जो हुर्मत और इज्जत है उससे हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती की हुर्मत को हुजूर ने बढ़ा करके बताया। एक दिन काबे से मुखातिब होके कहा, काबा तेरी शान ये कि जो तेरे इर्द गिर्द तवाफ करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। आप बताएं मुझे, जब हम काबे की बेहुरमती नहीं कर सकते तो किसी मुसलमान की इज्जत की बेहुरमती हम कैसे कर सकते हैं? जबकि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के हम किसी पे तोहमत लगा देते हैं, उसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है, उसने तो चोरी कर लिया, उसने तो जिना कर लिया, उसने तो, औरतें खास तौर पे फ्री रहती है तो वो इसके उसके में ज्यादा लगी रहती है। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई किसी पे तोहमत लगाए और इस्लामी हुकूमत होगी तो उसको कोड़े लगाए जाएं। मोमिन की हुर्मत बहुत बड़ी चीज, लेकिन लोग इसमें उसमें लगे रहते हैं। हुजूर ने कैसी दीनदारी पैदा की, वो दीनदारी तो आज मुसलमान जानते ही नहीं, वो किताबों में बंद हो गई। वो दीनदारी जो उस दिन पे अमल करते थे वो कब्रों में चले गए। आज हम नुमाइशों के रसूमात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आइए उस दीनदारी का एक तस्वुर देखें। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सहाबाए किराम बैठे हुए थे, सहाबाए किराम बैठे थे और इल्मी मुज़ाकरा चल रहा था। इल्मी मुज़ाकरा उसको कहते हैं, दीन की कुछ बातें हो रही थी। ऐसे में अचानक बदबू उठी। अचानक से बदबू उठती है। महफिल के अंदर बदबू उठने का मतलब यह है कि किसी के खराब पेट से जो है वो हवा खारिज हो गई और पूरी महफिल बदबूदार हो गई। यानी मस्जिद के अंदर किसी ना किसी का तो वुजू टूटा, और वुजू टूटा तो बदबू आने लगी। अब आप अंदाजा करें मोमिन की हुर्मत और मोमिन की इज्जत का तहफ्फुज उनके नजदीक क्या था? वुजू ही तो टूटा था।
उस्ताद कह देते चलो उठो, जिसका वजू टूटा है जाके वजू करके आओ। ये बात कही जा सकती थी, कही भी जाती है, लेकिन उस समाज में जो मदनी समाज था, वो समाज जिनको रसूलुल्लाह ने दीनदार बनाया था, जिनकी दीनदारी पर कुरान गवाही देता है, जिनकी दीनदारी की कस्में उठाई जा सकती है, वो कैसे दीनदार थे? जिसका वजू टूटा ना, उस्ताद ने उसको नहीं कहा कि जाओ उठ करके वजू करके आओ। क्यों? अगर वो जाते उठ के वजू करने के लिए तो लोग उनको हकीर नजर से देखते कि इसकी वजह से बदबू फैली। तो उस्ताद ने क्या किया महफिल में, जब बदबू आई और लोग एक दूसरे को देखने लगे तो उस्ताद ने कहा चलो हम सब मिल करके उठ करके वजू करते हैं, जिसका टूटा है उसका वजू हो जाएगा, जिन लोगों का नहीं टूटा है उनकी तजदीद वजू हो जाएगी, लेकिन एक मोमिन की इज्जत बच जाएगी। आप तवज्जो फरमाएं, आप गौर करें उस मदनी मुआशरे के अंदर किस कदर हुर्मत का। हालांकि मैं समझता हूं कि किसी का वजू टूटा और बदबू आई तो उसने क्या जलील होना था, क्या रुस्वा होना था। आइए उससे लगती हुई एक बात मुझे और याद आई। सूफिया किराम में एक सूफी है, उनका नाम हातिम है और उनको हातिम असम कहते हैं। बहनों की खास तवज्जो, देखिए हमारे जो समाज में और माशरे के अंदर जो झगड़े हैं, नफरतें हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ऐब जोई है, कीना है, गीबत है, इसलिए झगड़े उरूज पर है। सास के पास जो वो देवरानी जाकर के कान भरती है, सास बहू में झगड़ा लग जाता है। भाई बैठ करके छोटे भाई के खिलाफ माँ बाप के कान भरता है, घर में झगड़ा लग जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो माशरा तश्कील दिया वो मोहब्बतें मोहब्बतें सिर्फ मोहब्बतें थी, और हमें सिर्फ मोहब्बतों का सफीर बनने का हुक्म दिया गया है। नफरतें हमारे यहाँ है ही नहीं, नफरतों का कोई तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो दुश्मन से भी नफरत की बात नहीं करता। जान के दुश्मनों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चादरें बिछाई। तो हजरत सैयदना हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनको असम क्यों कहते हैं? असम, हातिम असम। असम के माना होता है बहरा। आपने कुरान में पढ़ा होगा ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, तो ये सुम्मुम से बना है जो सुन नहीं सकता, उसी सुम्मुम से असम, सुम से असम यानी बहरा जो सुन नहीं सकता। हातिम बहरा। किसी मौलाना को आप बहरा कहो, किसी पीर साहब को आप बहरा कहो, अजीब सा नहीं लगता? लेकिन पूरी दुनिया हातिम को क्या कहती है? हातिम असम, हातिम बहरा। अब हजरत हातिम को असम क्यों कहते हैं? हालांकि आप उनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो बहरे नहीं थे, लेकिन वो बहरे कहलाए गए। वजह क्या थी? अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं, ये हजरत हातिम, इनके पास एक बूढ़ी औरत मसला पूछने के लिए आई। अब बुढ़ापा भी बुढ़ापा होता है, कमजोरी का आलम होता है। वो मसला पूछना चाहती थी बूढ़ी औरत, लेकिन उसको जो है पेट की तकलीफ थी, पेट में गैस भर गई। उसने सोचा कि अगर इतने बड़े बुजुर्ग के सामने हवा निकल गई तो अच्छी बात नहीं। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रोक सकी, कंट्रोल नहीं कर सकी, तो उसके पेट की हवा निकल गई जोर से। तो वो बूढ़ी शर्मिंदा हो गई कि मेरे इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। वो शर्मिंदा हुई तो हजरत हातिम ने उस औरत को कहा, माई तूने कुछ बात कहा, जरा जोर से बोल। उसने जोर से बोला, कहा और जोर से बोल, और जोर से बोला, और जोर से बोल। बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह से चिल्लाई हुई इतनी बात नहीं सुन सकता, बहरा है, तो वो हवा की आवाज कैसे सुन लेगा। उसकी सारी शर्मिंदगी खत्म हो गई। और उस दिन के बाद से लोगों ने हातिम को बहरा 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 कहना शुरू किया। मुरीदों ने कहा, हजरत हम जानते हैं आप बहरे नहीं हैं, लेकिन लोग आपको बहरा कहते हैं। हजरत हातिम ने फरमाया, बेटा बहरा बन के जिंदगी गुजारना तो गवारा है, लेकिन किसी मुसलमान को शर्मिंदा कर दूं मुझे ये गवारा नहीं। जब तक वो बूढ़ी औरत जिंदा रही आप बहरे बन करके रहे। दुनिया ने उनको हातिम असम कहना शुरू किया। दीनदारी ये है। हमारे पास कौन सी दीनदारी? और एक बात और अर्ज कर दूं इस उन्वान के हवाले से, दीनदारी का पहला जिना है नमाज की पाबंदी। आप और हम नमाज छोड़ करके कभी दीनदार बन ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। आजकल लोगों का एक जहन बना हुआ है, अरे छोड़ो यार, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मैं कहता हूं सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट। हम यूट्यूब के लिए टाइम निकालते हैं, फेसबुक के लिए टाइम निकालते हैं। अगर कोई दोस्त तो मिल जाए ना, सिर्फ एक चाय पीने बैठते हैं तो घंटों गुजार देते। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं। जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया हमें, उसके लिए 10 मिनट नहीं। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम लग रहा है। और 50 मिनट निकालने से आदमी बचता किस चीज से? अल्लाह के अजाब से बच रहा है, अल्लाह की नाराजगी से बच रहा है।
कब्र के अजाब से बच रहा है, बुरी मौत से बच रहा है, रिस्क की तंगी से बच रहा है। सोचिए तो सही, 50 मिनट निकाला तो क्या मिल रहा है उसको, कितना बड़ा इनाम मिल रहा है उसको 50 मिनट निकालने पर। तो दीनदारी का पहला जीना नमाज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। सैयदना फारूक आजम को खंजर मारकर जब जख्मी कर दिया गया, पूरे बदन से खून रिस रहा था और आप नमाज की तैयारी कर रहे थे। लोगों ने कहा आप जख्मी हैं, इस हालत में आप नमाज पढ़ रहे। इरशाद फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं है, मैंने नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते जो जानबूझकर नमाज छोड़े जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। जब नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना, नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, अब वही रसूल फरमा रहे जो नमाज छोड़े उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। आप सही बताइए, अगर पुलिस के रजिस्टर में अपना नाम आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है, जबकि पुलिस वाले तो रिश्वत लेके भी नाम काट सकते हैं, कोई सियासी सोर्स लेकर जाओगे तो भी नाम काट सकते हैं। जो लोग रिश्वत लेके मैनेज हो जाए, जो किसी के दबदबे से मैनेज हो जाए, उनके रजिस्टर में नाम आने से हमारी रातों की नींद उड़ती है। रोजाना 5 वक्त की नमाज छोड़कर पूरी फैमिली का नाम जो है वो जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, कभी हमारी नींद उड़ी है? आप गौर तो फरमाएं, किस राह पे जा रहे हैं? चंद लम्हे की जिंदगी के लिए, चंद लम्हे के आराम के लिए हम कितना बड़ा अजाब मोल ले रहे हैं। अल्लाह के अजाब के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह का अजाब मैं जानता हूं, अगर तुम वो जानने लगो तो तुम ऐसे घुल जाओ जैसे नमक पानी के अंदर पिघलता है। हम अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए तो सुबह 5-6 बजे जगाते हैं, कभी हमने फजर की नमाज के लिए भी जगाया है? अगर ट्रेन पकड़नी हो मनमाड़ से तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना हो हमारी आंख नहीं खुलती। तो जो कौम ट्रेन से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे उसका ईमान कितना मोतेबर है। आज हम कहते हैं सब कुछ है मौलाना, सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने गद्दे लाए हैं, सुकून नहीं है, मकान बनाया, सुकून नहीं है, पंखे लगाए, सुकून नहीं है, एसी लगाए, सुकून नहीं है, हमारे घर में सारी रातों का सामान है, सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि पैसों से गद्दे खरीदे जा सकते, सुकून नहीं खरीदा जा सकता। हवाओं से और एसी से सुकून नहीं मिलता, सुकून तो अल्लाह की अता से मिलता है। जो कौम रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक न पहुंचाए उसको सुकून कैसे मिल सकता है? अल्लाह के बंदों, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है तो उसके लिए पहला जीना नमाज है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी का हाल ये है उसको जिल्लत की मौत आती है। बेनमाजी जलील होके मरता है, बेनमाजी भूखा मरता है, उसको इतनी भूख लगती है मरते वक्त कि अगर उसके पेट के अंदर सारी दुनिया की गिजा डाल दी जाए तो भी उसकी भूख मिट नहीं सकती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत के वक्त बेनमाजी को इतनी प्यास लगती है कि 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। गौर करें कैसी जिल्लत है। फिर फरमाया अजाब कब्र में वो मुब्तला होता है और अपनी दोनों उंगलियों को एक दूसरे में मिलाकर यूं बताया जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिल गई है, बेनमाजी की पसलियां भी आपस में मिल जाती है, उसकी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है। फिर फरमाया बेनमाजी पर एक अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, उसका नाम भी बताया, फरमाया उसका नाम शुजाउल अक़रा है और ये शुजाउल अक़रा इतना खतरनाक सांप है, फरमाया उसकी आंखों से आग निकलती है और उसके जो नाखून है वो लोहे के हैं। वो जब किसी को डंक मारता है तो उसके जिस्म में 1000 साल तक के जहर गर्दिश करता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है, वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। और फरमाया वो कितनी बार डसेगा? इरशाद फरमाया फजर नहीं पड़ा तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा तो असर तक, असर नहीं पड़ा तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा तो फजर तक, उसको वो डसता रहेगा यहां तक कि कयामत कायम हो जाए। अगर 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता नमाज के लिए तो क्या कयामत तक वो डसता? अच्छा, ये मौलवी साहब का कहना नहीं है, कोई सियासी लीडर का कहना नहीं है, ये उस रसूल की जबान से निकले हुए अल्फाज है जिनकी जबान पर अल्लाह कलाम फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब इन पे वही की जाती है जबान इनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। आप बताएं अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे क़यामत तक बेनमाजी डसा जाएगा, बेनमाजी क़यामत तक डसा जाएगा। बताइए, लोग पता नहीं क्या क्या टाइटल दे रहे होंगे, अंदर सांप डस रहा होगा। और थोड़ा गौर तो करो, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया डसा जाएगा, हम खेत का अगर सांप डस ले बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत का बिच्छू डस ले बर्दाश्त नहीं कर सकते, कब्र का वो सांप
जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है, उसकी लंबाई 70 साल का फासला है। ये हाल है। अगर एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट कहते हैं किसको है मेरे भाई? अगर हम मुंह में पान डाल लेना तो चबाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। आप बताएं? और नमाज के लिए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट, 50 मिनट निकाल लो, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। मुराद को पहुंचे, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने दिलों को पाक कर लिया और नमाजी बन गए, वो कामयाब हो गए। अल्लाह ने कामयाबी की जमानत दी है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, आजकल बहनें कहती हैं काम करने हैं, खाना पकाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं कहा ये सब झूठे बहाने। जितनी राहत और आराइश आज के दिन है कल नहीं थे। आप माँ हैं, क्या सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा माँ ना थी? आपके बच्चे हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे नहीं थे? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा 19 साल की उम्र में 5 बच्चों की माँ बन गई थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में 5 बच्चों की माँ। आज मैं कहता हूं गरीब से गरीब, गरीब तो छोड़िए, जो लोग सिग्नलों पे भीख मांगते हैं उनके घर में भी पीसा हुआ आटा आता है। जो लोग सिग्नलों पे भीख मांगते हैं उनके घर में भी पीसी हुई मिर्ची का पाउडर आता है ना? जो रोडों पर भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी हल्दी का पाउडर आता है, और पानी का नल उनके घरों के अंदर लगा है ना। कम से कम तो ये हाल है कि नल तो हर एक के घर में लगा हुआ है। ऐसा ही है। और फिर हमारी कौम की बेटियां कहती है कि हमें टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा 5 बच्चों की माँ है, और बच्चे भी बिल्कुल बहुत कम उम्र के, छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, और गैप भी बहुत कम है। अंदाजा फरमाए, हाल ये है चक्की खुद ही चलाती है, आटा खुद ही पीसती है, पानी भर कर लाती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं मशकीज़ें उठाने से उनके जिस्म पर निशान पड़ गए थे, मशकीज़ों के। चक्की चलाने से हाथों में छाले पड़ गए थे। कोई कनीज और कोई गुलाम घर में नहीं था काम करने वाला, सब काम अपने हाथ से करती थी। चूल्हा भी मुंह से फूंकती थी। हालांकि बाद में तरक्की का दौर आया तो चूल्हा फूंकने के लिए भी फुकनियां आ गई, आपने बचपने में देखा होगा। लेकिन उस दौर में तो फुकनियां भी नहीं थी ना, वो मुंह से फूंकती थी। तो फरमाते हैं मौलाए कायनात पूरे कपड़े जो है वो जो फूंक से जो जर्रात निकलते थे उसमें अट जाते थे। इतनी मेहनत के बाद भी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फर्ज तो फर्ज है, नफल नहीं छूटती थी। और हाल ये था कि इशा की नमाज के बाद जब नफल शुरू करती तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। जब सुबह अजान की आवाज सुनती तो जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करती और आंख में आंसू लेकर कहती अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। मौला कोई रात ऐसी तवील अता कर दे ताकि मैं जी खोल के सजदा कर सकूं। आप अंदाजा फरमाएं, हमें गुनाह करने के लिए रात कम पड़ती है, उनको सजदा करने के लिए रात कम पड़ती थी। ये सब बहाने, बहानों से आप मौलवी का मुंह चुप करा सकते हो, मौला की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। तो दीनदार बनने का पहला जीना है क्या? नमाज पढ़ो, नमाज के पाबंद। खुशी हो, गमी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई मौसम हो, नमाज पढ़ो। और टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। नंबर 2, कामयाबी का दूसरा उसूल। पहली चीज दीनदार बनो, दीनदारी का पहला जीना नमाज। नंबर 2, मालदार बनो। पहली चीज कामयाबी के लिए दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार सूद से नहीं, मालदार लोगों का माल हड़प करके नहीं, मालदार झूठ बोल के नहीं, मालदार धोखा दे के नहीं, बल्कि मालदार हलाल से बनो। अब आप कहेंगे इस्लामी जलसे में माल का क्या जिक्र? याद रखना दकियानुसी ख्याल के लोग कुछ और होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है कि मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाए। जब माल नहीं होगा आप ज़कात कैसे दोगे? माल नहीं होगा आप मस्जिद कैसे बनाओगे? माल नहीं होगा आप मदरसे कैसे बनाओगे? माल नहीं होगा आप हज उम्रा कैसे करोगे? माल नहीं होगा आप अच्छे अंदाज से जिंदगी कैसे गुजारोगे? दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था। हकीकत यह है कि उस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम की माहाना आमदनी लाखों रुपए की थी। ये और बात है कि सुबह को आता तो शाम तक के हुजूर पूरा खर्च कर देते थे, सदका कर देते थे। मालदार बनो। और नंबर 3, तीसरा कामयाबी का उसूल ये है कि तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो।
کوئی انپڑھ نہ رہنے پائے. 10ویں 12ویں پڑھا کر بچوں کو اسکول سے نہ نکالو, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کروا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب بزنس ہی کروانا ہے تو اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت ہے, اتنا پڑھا لو کہ حساب آ جائے. نہیں, یاد رکھنا ایک پڑھے لکھے, بہت پڑھے لکھے انسان کا انداز تجارت اور ہوتا ہے,